Hello everyone. In this video, I will discuss about checkpoint and assignment solution of electronic spreadsheet. The session is getting started with a spreadsheet. Now checkpoint. A dash is a grid of cell made of rows and column in a spreadsheet. The accurate answer is worksheet. वर्कशीट जो होता है एक ऐसा ग्रिड होता है जो आपको रो और कॉलम से बना होता है. सेकंड क्वेश्चन, a dash has multiple set of grids of cell each having a unique name made up of rows and columns. The accurate answer is workbook. Third question, what is the extension of workbook in OpenOffice Calc? OpenOffice Calc में वर्कबुक का क्या एक्सटेंशन होता है? So the accurate answer is .ods. Fourth question, the cell having bold boundary in is the dash cell, that is active cell. Next page. A dash has contained multiple dash in it. So the accurate answer is workbook contain multiple worksheet in it. A Calc spreadsheet can contain maximum dash worksheet 256. A group of continuous cell is called dash of cell. Range of cell. A cell address correct form is column letter and row number. The navigator dialog box can be opened by pressing the dash key, F5 key. The command to freeze some row या column is found on dash menu, window menu. The shortcut key to select all the cell in a worksheet is Ctrl plus A. The shortcut key to move to first cell of worksheet is Ctrl plus Home. The shortcut key to move to last cell of worksheet is Ctrl plus In. यानी Ctrl plus In से हम लोग सबसे लास्ट सेल में मूव कर जाएंगे. 14. The shortcut key to move to the first cell of the current row is Home. And last one, the shortcut key to move the last cell of current row is End. Now competency based question. Aksh and his team member have to make data entry related to 9 different aspects of a company budget. What is the best way to do this? Create 9 different workbook to store it. Create one workbook and store data in 9 different ranges. Create different data files and place where links in one worksheet. या क्रिएट वन वर्कबुक विथ 9 वर्कशीट ईच हैविंग डेटा रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट्स. सो आपका एक सीट में एक स्प्रेडशीट में आपका वर्कबुक में बहुत सारा वर्कशीट हम तैयार कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी. 17. इन द बजट वर्कबुक क्रिएटेड बाय अक्ष एंड हिज टीम वन स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल वैल्यू मस्ट बी हाईलाइटेड बट द डेटा एंट्री इज कंप्लीटेड बाय नाउ. व्हाट शुड आस्क एंड टीम डू नाउ? द ऑप्शन इज रिटाइप द डेटा टू बी हाईलाइटेड, create new workbook with required changes, select the range of cells to highlight it and do the changes. Any of these. The correct answer is select the range of cells to be highlighted and do the changes. Now assignment. What is a cell and how is it referred to OpenOffice Calc? सेल क्या होता है और ओपन ऑफिस कैल्क में वो सेल को कैसे रेफर करते हैं, यानी कैसे उसको डिनोट करेंगे. सेल इज ए बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला etc
can be placed. Cell is formed by intersection of row and column which given as a cell as a unique address. सेल जो होता है आपके वर्कशीट का एक यूनिट होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को, टेक्स्ट को, फॉर्मूला को इंटर करते हैं, और सेल जो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से बनता है। आपका रो और कॉलम से इंटरसेक्ट होने के बाद एक सेल जनरेट होगा। What do you mean by range of cell? A range of cell is a group of continuous cell that forms rectangular area in shape. A range is specified by giving the address of first cell and last cell of the range separated by some symbol character. रेंज ऑफ सेल का मतलब होता क्या है? ऐसे मान लीजिए अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, एक्सप्रेशन में काम कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट तक जो भी आपका सिंबल्स होगा, कैरेक्टर होगा, उसके द्वारा वो डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका स्टार्टिंग A1 है तो आपका लास्ट में हो सकता है, यहाँ पे अगर 10 नंबर में हो तो आपका रेंज ऑफ सेल हो जाएगा A10 से A1 तक, यानी A1 is to A10, ऐसे आपका रेंज ऑफ सेल कहलाएगा। यही आपका रेंज ऑफ सेल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between a worksheet and a workbook? A worksheet is a grid of cells made up of row and column, whereas workbook is a multiple sheet can be combined under a file. देखिए वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट जो हम लोग एक्सेल फाइल या स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें आपका इस तरीके से सेल आपका बना रहेगा, तो उसी ग्रिड ऑफ सीट को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। और वर्कबुक क्या होता है? आप अगर एक्सेल सीट को या स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे तो आपका उसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपका दिया होता है। तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वर्कबुक क्या हो गया? एक मल्टीपल सीट का फाइल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पैकेज विच परमिट पीपल टू क्विकली क्रिएट, मैनिपुलेट, एनालाइज डेटा, अरेंज इन रोज एंड कॉलम? तो आपका होगा स्प्रेडशीट पैकेज, यानी इसके मदद से हम लोग किसी भी तरह का डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और उसमें जो भी डेटा को कैलकुलेशन करना चाहे कैलकुलेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है? आपका रो भी होता है, कॉलम भी होता है, सेल भी होता है, यानी कि आपका इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। राइट सेल रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग, सेल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो 18 एंड कॉलम Z, तो इसका होगा आपका Z18। द राइट मोस्ट सेल इज रो 13 इन वर्कशीट XFZ32, यानी सबसे लास्ट का राइट मोस्ट सेल क्या होगा? तो आपका होगा XFD32। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू इंटर सेल, रो, कॉलम इन अ वर्कशीट? आप एक वर्कशीट में सेल को, रो को, कॉलम को कैसे इंटर करेंगे? सो सबसे पहला हमारा स्टेप है हाउ वी कैन इंटर सेल्स बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। हम लोग सेल को कैसे इंटर करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ भी सेल को इंसर्ट करना है वहाँ पे हम लोग सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट अ रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल वेयर वी वांट टू इंसर्ट द न्यू ब्लैंक सेल। स्टेप 2, इंसर्ट ऑन मेनू यानी क्लिक सेल। स्टेप 3, नाउ इंसर्ट डायलॉग बॉक्स पॉपअप अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, क्लिक शिफ्ट सेल राइट इफ यू वांट टू शिफ्ट द एग्जिस्टिंग सेल्स टुवर्ड्स राइट, और शिफ्ट सेल डाउन इफ यू वांट टू शिफ्ट द एग्जिस्टिंग सेल डाउनवर्ड्स। अगर सेल आपको राइट में आना है तो राइट के अकॉर्डिंग हम लोग क्लिक करेंगे, अगर सेल जो है एग्जिस्टिंग सेल के नीचे अगर करना है तो हम लोग डाउनवर्ड्स की तरफ उसको क्लिक करेंगे, तो आपका क्या होगा? सेल इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद ओके करेंगे तो आपका सेल वहाँ अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इंटर रो बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले, टू इंसर्ट अ सिंगल रो क्लिक अ सेल इन रो इमीडिएटली बिलो वेयर वी वांट द न्यू रो। जहाँ भी हमें नया रो को इंसर्ट करना है वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपका क्या होगा? रो जो है इंसर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंटर ए कॉलम इन ए वर्कशीट? We can enter column in a worksheet by the following steps. To insert a single column, click a cell immediately to the right of the where we want to insert the new column. जहाँ भी आपको कॉलम को इंसर्ट करना है
वहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका इंसर्ट कॉलम का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका कॉलम वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फ्रीज सम रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट? हम लोग रो और कॉलम को वर्कशीट में क्यों फ्रीज करते हैं? कभी कभी हमारा होता क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है पेज के टॉप में, या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो आपको स्क्रॉल करने के बाद सामने होना चाहिए। तो उस कंडीशन को दिखाने के लिए, उस कंडीशन को शो करने के लिए हम लोग फ्रीज का ऑप्शन यूज करते हैं। समटाइम some row column store some important piece of information which we want to view all the times even if we have moved to next page of the worksheet. For this purpose we can freeze row and columns in a worksheet. Now next question, how do you freeze some row and column in a worksheet? अब हम लोग रो एंड कॉलम को कैसे वर्कशीट में फ्रीज करेंगे। तो जो आपको रो एंड कॉलम को फ्रीज करना है, सबसे पहले उसके टॉप हेडर को या फिर रो को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद कमांड विंडो में आपका फ्रीज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका फर्स्ट रो एंड कॉलम आपका फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज स्प्लिटिंग ऑफ स्क्रीन यूजफुल? स्प्लिटिंग ऑफ स्क्रीन यूजफुल कैसे है? देखिए होता क्या है, कभी कभी आपका सेल जो होगा या वर्कशीट जो होगा, हम लोग वर्क जो करते हैं बहुत ही लंबा चला जाता है। मान लीजिए बहुत सारा वर्क कर रहे हैं और उसमें आपका लेंथ जो है वर्किंग का बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट का यूज करते हैं। स्प्लिट में क्या होगा कि आपका सेल जो है यानी वर्कशीट जो है, वर्कशीट ये ऐसे दो लाइन में डिवाइड हो जाएगा, दो लाइन में यानी दो ग्रुप में आपका डिवाइड हो जाएगा। ऐसे बीच में लाइनिंग आ जाएगा और ऐसे लाइनिंग आ जाएगा, यानी आपका एक वर्टिकल होगा एक ओरिएंटल होगा। यानी इस कंडीशन से आप सेल को अपने अनुसार या जो वर्कशीट होगा उसको अपने अनुसार जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद आप उसमें किसी भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट सेल स्क्रीन वी कैन पोजीशन द सेल कंटेनिंग द नंबर इन वन सेक्शन and each of the cell with formula in other section. Then we can change the number in the cell and watch how it affect each of the formula. यानी मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई इंटर करते हैं, यहाँ कोई डेटा इंटर करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है या क्या एडिशन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, क्या टोटल है, आप टोटल को नेक्स्ट सीट में देख सकते हैं, यानी नेक्स्ट जो उसका सेल होगा उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका चेक पॉइंट एंड असाइनमेंट क्वेश्चन था।